Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about real and apparent weight. For this we must have knowledge about the difference between real weight and apparent weight. What is real weight? Real weight is basically the gravitational pull of the earth on the object, whereas our earth is attracting every body towards its center. That gravitational pull is known as the real weight. And apparent weight is the force which is equal and opposite to the gravitational pull. That is basically the tension in the measuring instrument. If we are using a spring balance to measure the mass of a certain body, then its weight will be vertically downward and tension in the spring will be vertically upward. And that will represent the weight of the body, that will be the apparent weight, while the real weight will be downward, that is the gravitational pull. Or we can say that apparent weight is the force which is required by body from falling, is known as apparent weight, which avoids the falling of the object, जो उसे नीचे गिरने से रोकेगी, वो फोर्स को हम कहेंगे apparent weight. फर्स्ट केस में अब हम डिस्कस करते हैं. वहाँ हमारे पास जो वेट है वो मेजर करने के लिए मुख्तलिफ टाइप के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Anything that has definite boundary in which a certain measurement is taken or certain experiment is performed, that is known as frame of reference. If we have a particular frame of reference in which we are measuring the weight of an object, that may be an accelerated frame of reference or non-accelerated frame of reference. ये भी हो सकता है वो frame of reference रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो frame of reference certain acceleration के साथ मूव कर रहा हो. अब हम डिफरेंट केसेस लेंगे जिसमें हम ये पहले ये कंसीडर करेंगे कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो तो वेट पे क्या असर पड़ेगा, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड हो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और फिर हम दोनों केसेस लेंगे कि अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड हो फिर क्या होगा और अगर डाउनवर्ड हो तो फिर कैसे होगा. केस 1 हम लेते हैं. द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वी कंसीडर अ लिफ्ट in which a spring balance is attached with its ceiling to measure mass. Here lift is the frame of reference in which certain mass of the object is measured, and an observer is present in that lift which is taking the reading or taking the observation of that mass. Here a spring balance is we see here a spring balance is attached with the ceiling of the lift and a mass, a weight of any object, that may be a bag or a certain edible thing or a toy for which we are measuring the mass, is attached with the spring balance. Now weight is vertically downward and tension in the spring is vertically upward. And this lift is at rest, or we are saying that it is moving with uniform velocity. When there will be no change in velocity, there will be no acceleration. Actually we are saying that in this case acceleration is zero. It means that when acceleration is zero, so net force on the body will be जीरो, बिकॉज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है. तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है मास तो कभी नहीं जीरो हो सकता, तो फिर फोर्स जीरो है. If W is the weight of the object and T is tension in the string, then T minus W will be equal to ma. ये हमने ऐसे क्यों लिया है? क्योंकि टेंशन अपवर्ड है, इसको हमने पॉजिटिव लिया है, वेट डाउनवर्ड है, इसको नेगेटिव लिया है. एंड और ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ फोर्सेस. और फोर्स अब किसके इक्वल होती है? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है, इसलिए हमने इसको ma की इक्वल लिया. As acceleration is 0, so T minus W will be equal to 0, and from here T will be equal to W, or we can say that tension is balancing weight. Then apparent weight will be equal to real weight of the object for an observer in the lift.
ये किस केस में है? जब एक्सेलरेशन 0 है, तब रियल वेट ऑब्जेक्ट का और अपेरेंट वेट दोनों सेम होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। ये सर्टेन एक्सेलरेशन ए के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वही हमने स्प्रिंग बैलेंस को ज़रा डिजिटल शेप में ले लिया ताकि इसकी रीडिंग से हमें पता चल सके। यहाँ पे हमने ये एक टॉय शेप जो है वो फिश शेप में हैंग किया है इसके साथ। ये ऑब्जर्वर है जो इसकी रीडिंग नोट करेगा। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, as acceleration is non-zero, it means that net force is not zero। अब यहाँ पे acceleration present है, और तो acceleration किस वजह से होता है? due to the force। वो force कौन सी है? वो force जो lift को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, that is producing acceleration। if W is the weight of the object and T is tension in the string, then T minus W is equal to ma। अब T upward है टेंशन, weight downward है, और ये किसके इक्वल आएगा? एम ए के, क्योंकि फोर्स एम ए के इक्वल होती है। तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा डब्ल्यू प्लस एम ए के इक्वल, एंड वेट इज इक्वल टू एम जी। सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। इट मीन्स दैट इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देर इज एन एक्स्ट्रा फैक्टर एम ए। तो इसका मतलब ये है कि जो टेंशन यानी ये स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग शो कर रहा है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है, अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी जा रहा है। तो ऐसा फील होगा कि वो बॉडी ज़्यादा हैवियर है। जब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट लाइटर फील होगा। देन अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट एम ए। देन रियल वेट से एम ए अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखें ज़रा, नोट करें रीडिंग क्या आ रही थी। से हमने यहाँ सपोज ही किया कि ये 50 रीडिंग दे रहा है स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट केस में अब क्या है? लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट एक्सेलरेटेड है। तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम हो गई है, क्योंकि टेंशन जो है स्प्रिंग में वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, एज एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इट मीन्स दैट नेट फोर्स इज नॉट जीरो। इफ W is the weight of the object and T is tension in the string, then W minus T will be equal to ma। अब हमने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि टेंशन हमने पता चला कि यहाँ पे कम हो गई है वेट से, तो इसीलिए हमने आंसर को पॉजिटिव रखने के लिए वेट ग्रेटर है, टेंशन कम है, तो W में से T को माइनस किया है। दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से T किसके इक्वल आएगा? T को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो W माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए। सो द अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट एम ए देन रियल वेट से मास डिक्रीज हो जाएगा। कितना? एम ए फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। नाउ देयर इज केस 4 व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। हर वो ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब हमने ये कहा है कि लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, उसका ये मतलब नहीं है कि वो नीचे गिर रही है। उसका मतलब ये है कि लिफ्ट जो नीचे की तरफ आ रही है उसका एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ए किसके इक्वल है? जी के। सो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। यही है डाउनवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन। ये देखें टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाली थी जो इक्वेशन, वो हमने ले ली। यहाँ पे वेट एम जी के इक्वल है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जी के इक्वल है, तो एम जी से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टेंशन विल बिकम जीरो। इट मीन्स दैट द अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बाय स्प्रिंग बैलेंस इज जीरो। उस वक्त स्प्रिंग बैलेंस जीरो रीडिंग शो करेगा एंड ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी वेटलेस। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे कंडीशन होगी वेटलेसनेस की। वेटलेसनेस क्या है कि एक्चुअली वेट ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो है वो एक्सेलरेशन, चूँकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मैच हो गया है, इसलिए वहाँ पे कंडीशन है वेटलेसनेस की कि रीडिंग ज़ीरो आ रही है लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ऑब्जेक्ट का सर्टन मैस वेट प्रेजेंट है। सो एक दफ़ा फिर से हम रिपीट कर लें इन स्टेप्स को जो हमने रिजल्ट्स डिड्यूस किए हैं। व्हेन एवर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो देन टेंशन विल बी इक्वल टू वेट।
that is no change in real weight and apparent weight. Real weight will be equal to apparent weight. केस 1 में हमने क्या कहा, एक्सेलेरेशन इज 0 एंड रियल वेट इज इक्वल टू apparent weight. When lift is accelerated upward, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, देन apparent weight increases by a factor ma. And when frame of reference is accelerated downward, apparent weight decreases by a factor ma. And when acceleration of the frame of reference is equal to gravitational acceleration, then there is condition of weightlessness. क्लियर है?